آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان یسوع کی پہلی آمد اور دوسری آمد آنسانگ ہوں سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ خدا اس زمین پر تمام بنی نوع انسان کو آسمان کی بادشاہی کی راہ، گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی راہ اور نجات کی راہ سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اگر ہم 2000 سال پہلے ان کی پہلی آمد پر غور کریں تو اس وقت بہت سے ایسے مذہبی گروہ قائم تھے جو خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہودیت نامی ایک مقبول مذہبی گروہ تھا جو موسیٰ کی شریعت اور خدا یہوہ کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ اس صورتحال میں خدا اس زمین پر جسم میں آئے تھے، جیسا کہ ہم یوحنا باب 1 آیت 14 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ خدا جو کلام ہے اس زمین پر جسم میں آئے تھے۔ وہ مریم کے بطن سے انسان کے طور پر آئے تھے۔ ان کی انسانی صورت ہمارے جیسی تھی۔ چونکہ وہ اس زمین پر ہماری طرح یعنی آنکھوں، ناک، منہ اور کانوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے بہت سے لوگ یسوع کو مسیحا، مسیح یا جسم خدا کے طور پر نہیں دیکھ سکے تھے۔ نتیجتاً انہوں نے بعض اوقات یسوع کو بے عزت کیا، بعض اوقات انہیں سنسار کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں نجات کے لیے ان کے اس زمین پر آنے کے فضل کو صحیح طور پر سمجھنے میں ناکام رہے۔ ہم اس وقت کی تاریخی صورتحال کو کئی اندراجات سے معلوم کر سکتے ہیں جب انہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا تھا اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تاہم ان میں ابتدائی کلیسیا کے ایسے مقدسین بھی تھے جنہوں نے درست طور پر یسوع کو مسیحا اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا تھا۔ ان لوگوں کو خدا نے زندگی کا وہ تاج بخشنے کا وعدہ کیا تھا جو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز غائب نہ ہوگا۔ اس زمانہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ خدا اس زمین پر اپنی پہلی اور دوسری آمد دونوں پر جسم میں آئے تھے۔ اس زمین پر جسم میں آنے والے مسیحا کو درست طور پر قبول کرنے کی غرض سے ہمیں واضح طور پر اس وجہ کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کی دوسری آمد کے اس زمانہ میں بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، جیسے 2000 سال پہلے ان کی پہلی آمد کے وقت تھی۔ چونکہ انہوں نے مراد یافتہ طبقے کے علم کی بنیاد پر خدا کا جائزہ لیا اور انہیں جانچا، تو ان کا پہلا خیال یہ تھا کہ خدا کیسے انسان بن سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے انہیں سنسار کیا اور انہیں ناصریوں کا بدعتی فرقہ پکارا۔ آئے ہم ایک لمحہ کے لیے اس پر غور کریں۔ کیا یسوع کو مصلوب کرنے والے بچائے جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ وہ کیوں بچائے نہیں جا سکتے؟ صرف ایک وجہ ہے، انہوں نے خدا کو مکمل طور پر نہیں پہچانا تھا۔ وہ خدا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے جو ان پر مہربانی کر رہے تھے۔ خدا اس زمین پر ان گناہ گاروں کو جنہوں نے آسمان میں گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے، گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا ایک اور موقع بخشنے آئے تھے۔ تاہم انہوں نے اس زمین پر دوبارہ ان کا انکار کیا اور انہیں رد کر دیا، اس لیے وہ موقع بھی چھین لیا گیا۔ روح القدس کے اس آخری زمانہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ خدا اس زمین پر جسم میں آئے تھے تاکہ ابتدائی کلیسیا کی سچائیوں کو بحال کریں، یعنی نئے عہد کا سبت، نئے عہد کی فسح، 3 وقتوں کی 7 عیدیں اور نئے عہد کے تمام ضابطے، جیسے انہوں نے 2000 سال پہلے قائم کیے تھے۔ تاہم پھر بھی لوگ انہیں نہیں پہچانتے ہیں۔ چونکہ وہ انہیں نہیں پہچانتے تو وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے یہ 2000 سال پہلے تھا۔ وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ کیسے ایک آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بنا سکتا ہے؟ کیا ایسی باتیں کرنے والے واقعی آسمان کی بادشاہی حاصل کر سکتے ہیں؟
मेहरबानी से इब्रानियों बाब 9 आयत 27 में लिखे अल्फाज पर गौर करें। ये लिखा है कि जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होना है, ये लिखा है, और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। ये कहा गया है कि एक शख्स की मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, बल्कि खुदा की अदालत ये तयन करने के लिए होगी कि आया वो शख्स आसमान में जाएगा या जहन्नम में। बनिनो इंसान हरगिज इस सूरत हाल से बच नहीं सकते। वो सब चाहते हैं कि खुदा तख्ते अदालत पर यह फैसला सुनाएं कि तुम आसमान में दाखिल हो सकते हो। लेकिन किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कहा गया है कि वो हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ करेंगे। अगर 2000 साल पहले यसु को मसलूब करने वाले जहन्नम की अब्दी सजा में गए हैं, तो फिर वो सब जो इस जमाना में दूसरी बार इस ज़मीन पर आने वाले मसीह को कबूल नहीं करते, बल्कि उनकी राह में रुकावट डालते और उनकी तौहीन करते हैं, उन्हें भी जहन्नम की अब्दी सजा में जाना पड़ेगा। यही वजह है कि आप और मैं मसीहान संघों के बारे में तालीम देते और मुनादी करते हैं, जो पहली आमद पर यसु नाम से आए और दूसरी आमद पर यसु के नए नाम से इस ज़मीन पर आए हैं। क्या ऐसा नहीं है? हम यूहन्ना बाब 1 आयत 1 की तालीम पर एक नजर डालते हैं। यूहन्ना बाब 1 आयत 1। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम खुदा है जिन्होंने सारी कायनात और इसकी हर चीज को पैदा किया। क्या उन्होंने नहीं किया? खुदा के बारे में नबूवत की गई है कि वो इस ज़मीन पर हमारी तरह इंसानी सूरत में आएंगे। बाब 1 आयत 14। कलाम खुदा था। क्या ये बाब 1 आयत 1 में दर्ज नहीं है? खुदा का कलाम क्या बन गया था? और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इकलौता बेटा कौन है? ये यसू हैं, सही? बस हम कह सकते हैं कि खुदा यहोवा मुजस्सम होकर इस जमीन पर यसू नाम से आए ताकि बनिनो इंसान को निजात की राह सिखाएं और मुनादी करें। क्या हम नहीं कह सकते? किताब मुक़द्दस में यूहन्ना बाब 1 आयत 1 और 14 हमें रोशनास कराती है कि खुदा हमारे दरमियान रहे, और हमने उनका यानी इकलौते बेटे यसू का जलाल देखा। ताहम उस वक्त के यहूदी और मजहबी रहनुमा यसू को मुख्तलिफ अंदाज से देखते थे। आइए यूहन्ना बाब 10 से देखते हैं कि वो यसू को किस नजर से देखते थे। आइए हम यूहन्ना बाब 10 आयत 30 पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस जमीन पर आने वाले खुदा के साथ कैसा सलूक किया, जो उन्हें गुनाहों की माफी का मौका देने और निजात की राह सिखाने के लिए आए थे। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यसू ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुत तेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि वो उन्हें किस सबब से संसार कर रहे हैं? कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। वो यसू को संसार करने के लिए पत्थर क्यों उठा रहे थे? उनका जवाब यह था कि तुम आदमी होकर कैसे अपने आप को खुदा बना सकते हो? ताहम यूहन्ना बाब 1 आयत 1 और 14 क्या कहती है कि खुदा का कलाम क्या हुआ? कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। आइए हम यसाया बाब 9 की नबूवत भी देखते हैं। यसाया बाब 9 आयत 6 के अल्फाज पर गौर करते हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से
उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की गयूरी ये करेगी। यहाँ इस नबूवत में एक लड़के, एक बेटे के तौर पर किसको बयान किया गया है? इससे मुराद यसू हैं। लिहाजा जब यसू मसीह इस ज़मीन पर जिस्म में आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें अजीब मुशीर कहा जाएगा। और क्या? अगरचे वो इस ज़मीन पर एक लड़के, एक बेटे के तौर पर आए थे, लेकिन किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि उनकी हकीकी फितरत और हकीकी माहियत खुदाई कादिर अब्दियत का बाप है। ताहम चूंकि वो इस ज़मीन पर जिस्म में एक आम खानदान की तरह मरियम नामी माँ, यूसुफ नामी बाप के वसीला आए थे और उनके बहन भाई भी थे, तो क्या लोगों को यकीन था कि वो खुदा हैं? इंसानी नुक्ता नजर से उन्हें खुदा के तौर पर पहचानना नामुमकिन था। इसीलिए जब यसू इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने क्या कहा था? यसू ने कहा, मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। हमें खुदा को दुरुस्त तौर पर पहचानने के काबिल होना चाहिए। चूंकि लोगों ने उन्हें ना पहचाना, इसलिए यहूदा इस्करियोती ने यसू को पकड़वा दिया और बेच दिया। और लोगों ने कहा, डाकू बराबा को छोड़ दो और यसू को मसलूब कर दो। वो जिन्होंने हकीकी मायनों में उन्हें पहचान लिया था, ऐसा काम हरगिज ना करते। इस जमाना में भी ऐसा ही है। आइए इब्रानियों बाब 9 खोलते हैं। हम इब्रानियों बाब 9 आयत 27 से देखते हैं। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर वो कितनी बार जाहिर होंगे? दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। यसू का हमें निजात देने के लिए दोबारा आना उनकी दूसरी आमद कहलाता है। उन्होंने कहा कि वो दूसरी बार इस ज़मीन पर आएंगे, तो फिर उनकी पहली आमद और उनकी दूसरी आमद के हालात मुख्तलिफ होने चाहिए। इसकी वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि यहूदी लोगों ने मसीहा को पहली आमद पर गलत तरीके से कबूल किया था। क्या ऐसा नहीं है? तो फिर उनकी दूसरी आमद पर हमें क्या करना चाहिए? हमें उन लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जब वो आते हैं तो हमें उन्हें पहचानना और कबूल करना चाहिए। हम सबको वो बनना चाहिए जो उनकी निजात की तालीमात पर अमल करें। सही? बदकिस्मती से 8 अरब लोगों में से इस जमीन पर बहुत से लोग उन्हें नहीं पहचानते। चूंकि बहुत से लोग नहीं हैं, इसलिए सच्चाई के रास्ते को क्या कहा जाता है? ये सुकड़ा रास्ता कहलाता है, या इसे तंग दरवाजे के तौर पर बयान किया जा सकता है। क्या किताब मुक़द्दस कहती है कि इससे दाखिल होने वाले बहुत हैं? नहीं, बहुत से इसमें से दाखिल नहीं हो सकते। क्या मत्ती बाब 7 में ये नहीं कहा गया है? मैं चाहता हूं कि तमाम बने नूं इंसान निजात पाएं, लेकिन किताब मुक़द्दस कहती है कि तमाम बने नूं इंसान को ये राह जानने की इजाजत नहीं है, चूंकि ये लिखा है कि वो निजात के लिए दूसरी बार जाहिर होंगे। तो सिर्फ जब वो दूसरी बार आएंगे तो निजात की राह खुल जाएगी, और अगर वो नहीं आते तो हम इंसान हरगिज निजात की राह को समझ नहीं पाएंगे और तारीकी में रहेंगे। जब तक वो इस जमीन पर दूसरी बार नहीं आएंगे, कोई भी इंसान इम्तियाज ना कर सकेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। कुरूने वुस्ता के तारीख दौर में 321 बाद मसीह में सबत को मनसूख कर दिया गया था। 325 बाद मसीह में फसा को मनसूख कर दिया गया था। मजीद बरा 354 बाद मसीह में क्रिसमस, जो किताब मुक़द्दस में नहीं है, कलीसिया में एक रिवायत के तौर पर ऐसे कायम किया गया जैसे ये किताब मुक़द्दस की तालीम हो। नीस चर्च के ऊपर सलीब नस्ब की गई। सबत और फसा से शुरू करते हुए यके बाद दीगरे मसीह की सच्चाई गायब होती गई, जबकि वो चीजें
जो पहले कभी वजूद में नहीं थी, जाहिर होती रहीं। इस किस्म की कलीसियाएं जो हम अब देखते हैं, तारीख दौर के नतीजे में कायम हुई हैं। चूंकि कलीसियाएं अब मसीह की तालीमात से भरी हुई नहीं हैं, बल्कि इसके बजाय वो बुत परस्त मजहबी रसूमात से भरी पड़ी हैं, तो ये एक वाज़ेह वजह है कि क्यों मसीह को इस ज़मीन पर दूसरी बार आना चाहिए। तो फिर उन्हें कबूल करने की गर्ज से हमें यह जानना चाहिए कि वो कहां से आएंगे, वो कौन सी सच्चाई लाएंगे और वो किस निशान के साथ आएंगे। सही, उनकी पहली आमद पर लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। जब भी उन्होंने मुनादी की तो उन्होंने उनके कलाम की खिलाफ वर्जी की, दखल अंदाजी की और उनकी मुखालफत की। इस तरह यहूदियों यानी इसराइलियों ने यीशु मसीह पर इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़वा दिया और बेगुनाह मसीह को मसलूब करने का खौफनाक नतीजा निकाला। आज ये खुशखबरी सिर्फ यहूदी मुआशरे में नहीं है, सारी दुनिया में सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक इसकी मुनादी की जा रही है। अब आए हम किताब मुक़द्दस में इस नबूवत की तस्दीक करते हैं कि वो फिर इस ज़मीन पर दूसरी बार आएंगे। आए हम मीका बाब 4 आयत 1 से देखते हैं। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी। जब ये कहा गया है कि आखिरी दिनों में, तो इससे मुराद खुशखबरी के जमाना के बिल्कुल आखिर में पूरी नस्ल है। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी। बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों। और वो क्या करेंगे? वो अपनी राहें हमको बताएगा। आखिरी दिनों में जब वो दूसरी बार आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो अपनी राहें हमको बताएंगे और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत कहां से सादिर होगी? सयोन से, और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। किताब मुक़द्दस हमें यह सिखाती है। तो फिर आखिरी दिनों में हमें मसीह को ढूंढने के लिए कहां जाना चाहिए जो दूसरी बार इस ज़मीन पर आए हैं? हमें सयोन जाना चाहिए, जहां खुदा शरीयत और जिंदगी की राह की तालीम देते हैं। सयोन में कौन है? हम ज़बूर बाब 132 की तरफ जाते हैं। ज़बूर बाब 132 आयत 13। क्योंकि खुदावंद ने, उन्होंने किसे चुना है? सयोन को चुना है। उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। यह हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा। मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा। इसके काहिनों को भी मैं निजात से मुलव्वस करूंगा और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। खुदा ने क्या कहा था कि जब वो सयून में आएंगे तो वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि वो इसके काहिनों को निजात से मुलव्वस करेंगे। उन्होंने सयून को किस लिए चुना है? किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदा ने सयोन को अपने मस्कन के लिए चुना है, जो कि खुदा का घर है। तो फिर रूहानी लिहाज से सयोन कैसी जगह है? आइए हम यसाया की किताब बाब 33 आयत 20 से देखते हैं। यसाया बाब 33 आयत 20 में यह लिखा है कि हमारी ईदगाह सयोन पर नजर कर। बस सयोन ही वो जगह है जहां खुदा की ईदें मनाई जाती हैं। सयोन ऐसी जगह है जहां खुदा की ईदें मौजूद हैं और वहां खुदा की ईदें मनाई भी जाती हैं। शायद कुछ लोग पूछें, खुदा की ईदें क्या हैं? आइए हम मालूम करते हैं कि खुदा की ईदें क्या हैं। आइए हम अहबार बाब 23 आयत 2 खोलते हैं।
बनी इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। आयत 3, 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन कौन सा है? ये हर हफ्ते मनाई जाने वाली हफ्तावार ईद है, और सालाना ईदें साल में एक बार मनाई जाती हैं। हफ्तावार ईदों में से एक ईद सबत कहलाती है। हम आयत 3 दोबारा देखते हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारे सब सुकूनत गाहों में खुदावंद का सबत है। आयत 4, खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। फसा, ईद फतीर, पहले फलों का दिन, हफ्तों की ईद, नरसिंगों की ईद, कफारे का दिन और ईद ख्याम, ये सब सालाना ईदें हैं। आज हमारे आसपास साहिल समुंदर की रेत की मानिंद बेशुमार कलीसियाएं हैं, लेकिन उनमें से अक्सर क्या मानती हैं? वो इतवार की इबादत करते हैं, वो सबत का दिन नहीं मानते हैं। सबत का दिन ना मनाने का मतलब खुदा की ईदें ना मनाना है। ऐसी जगह जहां खुदा की ईदें नहीं मनाई जाती, उसे सयून हरगिज नहीं समझा जा सकता। तो फिर क्या खुदा ऐसी जगह रहेंगे जो सयून नहीं है? आखिरी दिनों में यह हरगिज खुदा का मस्कन नहीं हो सकता। खुदा ने कहा कि सयून हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। तो फिर महज सबत को ही देखते हुए क्या आप सब उन कलीसियाओं में फर्क नहीं कर सकते हैं जहां खुदा रहते हैं और जहां खुदा नहीं रहते हैं? जी, आप कर सकते हैं। सच्चाई के तमाम आइन दबाव बर्बाद कर दिए गए थे, ताहम खुदा दूसरी बार इस जमीन पर आए और सच्चाई के तमाम ज़ाब्तों को बहाल किया और इस जमाना में हमें सब कुछ सिखाया। क्या यही वजह नहीं है कि आप और मैं सबत का दिन, फसा, 3 वक्तों के साथ ईदें और नए अहद की तमाम सच्चाई को समझ सकते हैं? ऐसी ईदगाह में हम किससे मिल सकते हैं? हम सयून में रहने वाले खुदा से मिल सकते हैं। आखिरी दिनों में हम खुदा को कहां ढूंढ सकते हैं? हम उन्हें सयून में ढूंढ सकते हैं। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि वो वहां नए अहद की शरीयत का ऐलान करते हैं और तमाम बने इंसान को सिखाते हैं। तो फिर आज दुनिया में दीगर कलीसियाओं में सबत और फसा क्यों नहीं है? वो क्यों खुदा की ईदें मनाने से कासिर हैं? दानियल बाब 7 हमें इसका जवाब देता है। आइए हम दानियल बाब 7 आयत 25 इकट्ठे पढ़ते हैं। दानियल बाब 7 आयत 25 में यह लिखा है कि वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। किताब मुक़द्दस में हक ताला से मुराद खुदा हैं। पूरी कायनात में सिर्फ खुदा ही हक ताला कहला सकते हैं। तो फिर वो कौन है जो खुदा के खिलाफ बातें करेगा? ये इब्लीस है। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। और वो क्या करेगा? हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। वो क्या बदलने की कोशिश करेगा? और मुकर्ररा औकात शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उसे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करें। जैसा कि दानियल बाब 7 में नबूवत की गई थी, तो 4वीं सदी के आसपास खुदा की सच्चाई के मुकर्ररा औकात शरीयत बदलने शुरू हो गए और ये अमल तेजी से बढ़ता गया। बेशक इससे पहले भी बेदीनी के छोटे छोटे निशानात देखे जा चुके थे, ताहम इसका आगाज 321 बाद मसीह में हुआ, जब सूरज देवता की परस्तिश करने वाली रोमी सल्तनत ने सबत के दिन को खत्म कर दिया
और इतवार का कानून कायम किया। नीस 325 बाद मसीह में निकाया नामी जगह पर फसा मंसूख कर दी गई थी। फिर 354 बाद मसीह में क्रिसमस मुतारिफ करवाया गया और उसके बाद चर्च में सलीब मुतारिफ करवाई गई और उसे नस्ब किया जाने लगा। ये तमाम बुत परस्ती के अमाल एक एक करके कलीसिया में दाखिल हुए और ये अमाल एक कलीसिया की शक्ल इख्तियार कर गई जैसा कि आज है। ये तमाम कलीसियाएं वो नहीं हैं जिन्हें यीशु ने कायम किया था। हत्ता के 10 अहकाम में से खुदा ने हमें चौथे हुक्म के तौर पर यह हुक्म दिया कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। लेकिन कैथोलिक कलीसिया ने इसकी जगह खुदावंद के दिन को पाक मानना से बदल दिया। ये खुदा के कलाम की नबूवत के मुताबिक पूरा हुआ था। जैसा कि ये लिखा है, इस तमाम तब्दीली और खुदा के मुकर्ररा औकात और शरीयत की तहरीफ का माखज़ खुदा की मुखालफत करने वाले से शुरू हुआ था। खुदा खुद इस ज़मीन पर बने नूह इंसान को अपनी ईदें सिखाने आए थे। दूसरी तरफ शैतान ने बने नूह इंसान में झूठी मार्फत और मालूमात फैलाई ताकि ऐसा महसूस हो कि खुदा की ईदें कुछ भी नहीं थीं और खुदा की तालीमात को गलत तरीके से पेश किया, जैसा कि हम दानियल की नबूवत से देख सकते हैं। मसीह आनसांग होंग दूसरी बार इस ज़मीन पर आए ताकि बने नूह इंसान को जिंदगी के वो तमाम हकीकी आयन सिखाएं जो बिगड़ गए और तबाह बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने हमें जिंदगी की हकीकी फसा, जिंदगी का सब्बत, जिंदगी की ईदें और जिंदगी का नया अहद सिखाया। उन्होंने हमें ये सब चीजें बख्शी और आसमान पर चले गए। क्या ये सब नबूवत के मुताबिक नहीं हुआ था? दुरुस्त फहम के साथ हमें वो बनना चाहिए जो मसीह को कबूल करें। यहूदियों ने यीशु की पहली आमद पर उन्हें ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि तुम आदमी होकर कैसे अपने आप को खुदा बना सकते हो। हत्ता कि इस जमाना में भी लोग हम पर यह कहते हुए इल्जाम लगाते हैं कि कैसे एक आदमी खुदा होने का दावा कर सकता है और तुम क्यों एक आदमी पर ईमान रखते हो। यीशु भी इस जमीन पर एक आदमी के तौर पर आए थे। एक ऐसा मजहब जो मसीह को कबूल नहीं करता, यानी खुदा को, जो इस जमीन पर इंसान के तौर पर आए थे, यकीनन मसीहत नहीं है। आइए हम दूसरे यूहन्ना से तस्दीक करें कि किताब मुक़द्दस और अंबिया ने इस मामले की वजाहत कैसे की है। दूसरा यूहन्ना बाब 1 आयत 7। क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला ऐसा शख्स क्या है? मुखालिफ मसीह यही है। ऐसे लोग वो हैं जो मसीह की मुखालफत करते और उनके खिलाफ बोलते हैं। सादा अल्फाज में कहें तो वो मुखालिफ मसीह हैं और उनका ताल्लुक शैतान यानी इब्लीस से है। वो लोग जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते, वो मुखालिफ मसीह हैं। किताब मुक़द्दस इस मामले को वाज़ेह तौर पर बयान करती है और रसूलों और अंबिया ने भी वाज़ेह तौर पर इस मसले को इस तरह बयान किया है। ताहम आज, जैसा कि ये 2000 साल पहले उनकी पहली आमद के वक्त था, उन्हें इस हकीकत के साथ एक मसला है कि खुदा इस जमीन पर मुजस्सम होकर आए थे। क्या आपको लगता है कि खुदा के पास ऐसी कुव्वत नहीं है? हत्ता कि हम यानी वो रूहें जिन्होंने आसमान की बादशाही में गुनाह किया था जिस्म पहन सकते हैं, लेकिन क्या खुदा जिस्म का खैमा नहीं पहन सकते जिसे उन्होंने पैदा किया था? क्या ये माकूल है? खुदा जो कादिर मुतलिक हैं जिस्म पहन सकते हैं या वो रूह में हो सकते हैं। खुदा के पास सब कुछ करने का इख्तियार है। किताब मुक़द्दस हमें उन लोगों के बारे में क्या बताती है जो कहते हैं कि खुदा को जिस्म में हरगिज नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग धोखा देने वाले और मुखालिफ मसीह हैं, यानी झूठे मसीह और खुदा की मुखालफत करने वाले हैं। आज हम देख सकते हैं कि यीशु पहली आमद और आनसांग होंग दूसरी आमद की सूरत हाल में बहुत सी मुमासलतें हैं। इस जमाना में मसीह को कबूल करने की गर्ज से हमें सयून में रहना चाहिए, जहां ईदें मनाई जाती हैं।
खुदा आखिरी दिनों में सयून में अपनी शरीयत के साथ क्या करेंगे? वो तमाम बने नूह इंसान को अपनी शरीयत सिखाने और उन्हें निजात की राह पर ले जाने की गर्ज से इस जमीन पर दूसरी बार जाहिर होंगे। किताब मुक़द्दस और नबियों की नबूवतों पर ईमान रखते हुए हम वो लोग बने जो खुदा के कलाम पर मुतलक ईमान रखते और मसीह को कबूल कर सकते हैं, चाहे दुनिया हम पर कोई भी इल्जाम और तोहमत लगाए। हत्ता कि 2000 साल पहले उन्होंने यसू को नासरियों का बिदती फिरका पुकारते हुए उनकी बहुत तजलील की थी। हत्ता कि इब्तिदाई कलीसिया के अजीम रसूलों में से एक पौलुस रसूल को भी नासरियों का बिदती फिरका का सरगरो पाया गया था, जैसा कि अमाल बाब 24 में दर्ज है। ऐसा क्यों था? इसकी वजह यह थी कि वो खुदा पर ईमान रखता था जो एक आदमी के तौर पर इस जमीन पर आए थे। उनके गलत दावे ने कि खुदा कैसे एक आदमी के तौर पर आ सकते हैं, उनमें गलत नजरिया पैदा किया और ये नजरिया उन्हें अब्दी जहन्नम में ले गया। सच्चाई की राह यानी रास्तबाजी की राह हमेशा किताब मुक़द्दस में मौजूद है। आइए हम किताब मुक़द्दस पर गौर करें और आखिर तक खुदा के कलाम की तालीमात की दुरुस्त पैरवी करें, ताकि आप और मैं वो बने जो इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन की तरह आखिर तक इस ईमान को मजबूती से थामे रखें और जिंदगी के ताज को ना खो दें, बल्कि बड़ी इज्जत के साथ आसमान की अब्दी बादशाही में शानदार इस्तकबाल हासिल करें। आपका बहुत शुक्रिया।